This conference will now be recorded. चलो जी शुरू करें. It's 201. So this is going to be the next session. Let's review पिछले session में क्या किया था. Sigma and pi bond along the internuclear axis. Other than internuclear axis, sigma bond can be formed by S and S. The S plus PZ, P plus PZ. आपको specify करना चाहिए हमेशा that we are assuming internuclear axis to be the Z axis, to be the internuclear axis. Or pi bond is formed by px, py plus py. Remember, अगर axis common ना हो तो there cannot be any combination. तो अगर आप S जिसकी PZ एक्सिस है, अगर आप उसको PX या PY के साथ कंबाइन करने की कोशिश करेंगे तो सिमेट्री एलिमेंट उसको कंबाइन नहीं होने देगा. The sigma bond is much more stronger than pi bond. रेदर याद रखना दो एटम के बीच में जरूरी है कि कम से कम एक सिग्मा बॉन्ड, ज्यादा से ज्यादा एक सिग्मा बॉन्ड होगा. No two atom can have more than one sigma bond. The multiplicity is always going to be with the help of what? The pi bond. So pi bond is always going to be additional bond, बेशक dative हो. और याद रखना dative को हमेशा आपने covalent bond मानना है. It is truly a dative bond is a dative bond, a covalent bond only. So that was discussed. I hope आपने ये note down भी किया होगा sigma and pi bond के अंदर differences क्या है. This is going to be structure of ethyl. This is going to be planar. ऊपर और नीचे pi bond. Pi bond के we have two lobes. The pi bond has two lobes, one above and one below the molecular plane. ऐसे ही acetylene का if this is going to be the x-axis, this is going to be the y-axis, and ये वाली जो है हम इसको z-axis दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. So there is going to be two pi bonds here. That was the structure of acetylene, and this, that is the ethene was discussed. Along with that, we introduce a concept known as polar and non-polar covalent bond. Polarity introduced होती है due to difference in electronegativity. The shared pair of electron get displaced towards more electronegative element, bringing polarization. एक एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचता है तो उसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव एंड थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाता है. दिस इज गोइंग टू बी पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड. रिमेंबर साथियों, आयनिक बॉन्ड में गुड़िया कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होता था. कोवेलेंट इज गोइंग टू बी पोलर, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है. सो HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड, HF. Now you can extend this dictionary. आपने होमोटॉमिक को बोला था, अब आप लोगों के पास नॉलेज है, हम इसको बढ़ा सकते हैं. अगर मैं दो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे लगा दूं, I'm sorry, पैरा पोजीशन पे लगा दूं, it is going to be cancelled out. याद आया बच्चों? The trans is going to be having which zero dipole moment. याद करिए, आपकी कॉपियों में लिखा हुआ है BeF3, BeF2, they are going to be non-polar, right? तो पोलैरिटी को अब आप स्ट्रक्चर के साथ कोरिलेट कर सकते थे. मुझे आज की क्लास में जरूरत पड़ेगी इस रिलेशन की. पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड as the molecule is measured, polarity in the molecule is measured with the help of dipole moment. याद रखना dipole moment के दो ढंग हैं. This is a theoretical ढंग है. एक्सपेरिमेंटल वो तो मीटर ही आपको बताएगा, but theoretically it is going to be E into D. I expect that everybody remember E की value. -19 coulomb 1.602 और -10 electrostatic unit 4.8 into -10, where ESU is the CGS system and D is the bond length or internuclear distance. A word of advice, either SI में चलना, मतलब इसको कूलम में लेना और इसको मीटर में लेना. इधर CGS में चलना, इसको ESU में लेना, इसको सेंटीमीटर में लेना. Do you people remember 1 angstrom is equal to -10 meter is equal to -8 centimeter? अगर नहीं पता है बेटे तो मैं इसको यूज करूंगा. This is अग्रिम theoretical है.
थ्योरेटिकल पता है ना, आपके मार्क्स हम थ्योरी से अंदाजा लगा रहे हैं, आप इतने मार्क्स लेके आएंगे, बट असल में वहां पे आप कैसे लेके आएंगे वो तो उसी समय बताएगा। दिस इज करेक्ट था -30, सो जिसके बारे में मैं डाउटफुल था, दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट। 1 debye is equal to -30 कूलम मीटर। So debye is equal to -18 ESU centimeter or coulomb meter. 1 debye is equal to -30. This is relation is perfectly well now. It is verified. Dipole moment is going to be treated as a vector quantity. It is added, subtracted like a vector. A molecule may be non-polar in spite of having bond dipole. Presence of bond dipole does not guarantee that the given molecule is going to be polar. It depends upon their relative shape. Thus we concluded, ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, that polarity can be predicted by shapes and shape can be predicted by polarity. You will have to wait for Monday session. तो आपको ये जो स्ट्रक्चर अभी तो मैंने याद करवाए थे ना, मैंने कहा था अभी बस मेरे ऊपर एक्सेप्ट कर लेना. You yourself will be able to predict कि कौन सा कैसा स्ट्रक्चर आएगा. बट याद रखना दोस्तों, उसके पीछे जो एक ही नॉलेज चल रही है, दैट इज अ पीरियोडिक टेबल. अब आप लोगों को याद होना चाहिए. And we stopped on this point that no bond is 100% ionic or 100% covalent. We will be doing an interesting topic regarding topic, rather आज यही करेंगे सिर्फ, methods of prediction of percentage ionic and percentage covalent character. Remember, बेशक आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, this has partial ionic character. मे बी आप NaCl की बात कर रहे हैं, दिस हैज पार्शियल कोवलेंट करेक्टर. भगवान ने कोई 100% आयनिक और 100% कोवलेंट बॉन्ड बनाया ही नहीं है. आई नो जो तुम्हारे मन में बेटे कई डाउट्स होंगे, बट वो समय आने पे अपने आप निकलेंगे. यू माइट बी थिंकिंग कि ये तो शेयर्ड हो रहा है, तो इसमें आयनिक करेक्टर कैसे आएगा. सो बेटे यू हैव टू वेट टिल आई इंट्रोड्यूस लंदन डिस्पर्सिव फोर्स. अभी काफी दूर है. ओके चुप. सो बेटा इसके लिए आपको और पता लगेगा. नाउ वी स्टार्ट. दिस इज टुडे सेशन. यू नो, आप माने या ना माने, टेक्नोलॉजी को अपनी फायदे के लिए यूज करो. मैं अगर ऑफलाइन मोड में होता ना, मैं कभी भी तुम्हें इस प्रकार से रिवीजन ना करवाता. जो पता लगता है क्या ये रिप्रोड्यूसिबल हो सकता था इतना अच्छा, अब आपकी आंखों के आगे से सारे के सारा पिछला सेशन निकल के जाता. तो टेक इट फॉर योर एडवांटेज. ठीक है जी. इसके लिए सिर्फ एक डिसिप्लिन चाहिए कि आपको रेगुलर काम करना होगा. चलो जी शुरू करते हैं. और यहाँ से आज का सेशन, दैट इज 1 जुलाई का सेशन शुरू होता है. तो वंशिका बात रहेगा गुड़िया. मैं उत्कर्ष और पीपेट की तरफ से चल रहा हूँ. वंशिका, नो बॉन्ड इज 100% कोवलेंट और 100% आयनिक. Every bond has a mixture of two characters. By ionic bond we mean percentage ionic character. My friends, I'll be using IC as an abbreviation in the session. Ionic character goes for IC, is more than percentage covalent character and vice versa. आपको इसका मतलब समझ आया. अगर मैं NaCl की बात करता हूँ, इसका मतलब इसमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज ज्यादा देन परसेंटेज कोवलेंट करेक्टर. मे भी बेटे आपने अग्रिम वाटर देखा था, तो इसमें दो परसेंटेज आयनिक करेक्टर कम है और परसेंटेज कोवलेंट करेक्टर, सीसी को मैंने यूज किया है, कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है. बट हर मॉलिक्यूल के अंदर, हर बॉन्ड के अंदर दोनों होंगे, ज्यादा या कम. देयरफॉर वी एस्टिमेट परसेंटेज आयनिक करेक्टर और परसेंटेज कोवलेंट करेक्टर विद एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स. नोट्स बनाने जरूरी हैं आफ्टर द क्लास. चलिए जी, आदित्य बात कर सकते हैं. आदित्य, मैं आपको 5 या 6 मेथड्स कराऊंगा. सबसे पहला मेथड हम इंट्रोड्यूस करते हैं. एलिमेंट्स ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल. राइट, पीरियोडिक टेबल की नॉलेज बेटा जरूरी है. एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे कौन से आते हैं? इट इज गोइंग टू बी अमोदनी, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम. राइट, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है. याद आया मेरे को लेफ्ट साइड पे. अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो ये केटायन आसानी से बनाएंगे, और आयनिक बॉन्ड में तो एक केटायन और एक एनायन होता ही है. इफ यू रिमेम्बर,
लो आयनाइजेशन एनर्जी, हाई याद कर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फेवरिंग आयनिक बॉन्ड। तो इस करके अमोदनी तुम बोलते हो एलिमेंट्स ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पेरियोडिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सिद्धार्थ म्यूट करो and Siddharth mute karo, and less electron gain enthalpy. I can also mute and unmute all of you in one go, but I wish you do it. So less electron gain enthalpy, less electron gain enthalpy गलत लिख दिया। It is less क्या लिखना था अमोदनी? आयनाइजेशन एंथैल्पी combined with elements of extreme right hand side, which is more electronegative, more electron gain enthalpy to have more ionic character. For example, गुड़िया सोडियम इधर से, ऑक्सीजन उधर से, सोडियम इधर से, क्लोराइन उधर से, रुबिडियम इस तरफ से, क्लोरीन उधर से, बेरियम इधर से, क्लोरीन उधर से, and so on. These are going to form predominantly कौन सा करेक्टर? मोर आयनिक करेक्टर। जब मैंने ऐसा बोला है मोर आयनिक करेक्टर, माइंड इट, मैंने ऐसा बोला है कि इनमें आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा। आई हैव नो मेथड टू से दैट दिस इज गोइंग टू बी 100% आयनिक। इट मे बी 90%, इट मे बी 95%, वो हम आपको अभी थोड़े समय में बताने वाले हैं। इज द फर्स्ट पॉइंट क्लियर मेरे बच्चों? एलिमेंट्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, एलिमेंट्स ऑफ एक्सट्रीम राइट हैंड साइड के साथ प्रीडोमिनेंटली कौन से बॉन्ड बनाते हैं? द आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और याद रखना मेरे दोस्तों, अगर मैं AlCl3 की बात करूंगा, बेशक इसमें 3 बॉन्ड है, बट हमारा डिस्कशन परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन बॉन्ड में हो रहा है। तो माय फोकस इज इन वन बॉन्ड। ऑफ कोर्स वो पूरे मॉलिक्यूल में आगे ट्रांसलेट होगा ही होगा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट पोलैरिटी, आयनिक करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर इन अ बॉन्ड। इज इट क्लियर? चल सकते हैं? यस म्यूट अमोदनी। गुड बेटे। अनन्या प्रभाकर बात कर। अनन्या, इसका नाम ही होता है 1.7 रूल। और गुड़िया कभी कंफ्यूज नहीं होना अगर किसी बुक में 1.8 रूल बोलते हैं। सुन, आपकी एनसीईआरटी में आपको ऐसे कोई टॉपिक नहीं मिलेंगे जो मैं आपको करवाता हूँ। हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम जो फोकस में लेके चलते हैं गुड़िया, हम 2022 के आपके कॉम्पिटिशन्स को और फ्यूचर को लेके चलते हैं। एनसीईआरटी जो लेके चलता है, एनसीईआरटी सिर्फ आपकी 11th क्लास को फोकस में लेके चलता है। सो आई माइट बी डूइंग मोर देन योर एनसीईआरटी। माइट क्या करते ही है। तो अनन्या, अगर 1.7 की जगह पे 1.8 रूल दिखा तो कोई बहस नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी द सेम थिंग। सी गुड़िया, लेट EN किसको इंट्रोड्यूस करता था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एलिमेंट्स फॉर्मिंग अ बॉन्ड AB, be chi A and chi B respectively। chi कैसे लिखते हैं? जैसे मान तू X लिख रहा था, तेरे हाथ में थोड़ा सा करंट लग गया, समझ आया? X लिख रहा था, थोड़ा सा करंट लग गया, ऐसा इसको बोलते हैं काई। ये ग्रीक वर्ड्स हैं काई। काई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडिकेट करता है। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा प्रोवाइड की जाएगी। इट इज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। इट इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। यू डू नॉट हैव एनी वे कि आप किसी की भी एग्जैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंट स्केल्स होते हैं, जो हम बताएंगे, एग्जामिनर बताएगा, बुक वाला बताएगा, आपको याद नहीं करनी है। तो वापस आता हूं, लेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टू एलिमेंट A and B in the bond be chi A and chi B respectively. Then if, सुन, A B का मतलब ये नहीं कि हमेशा A को आगे रखना है। काई A और काई B का मतलब हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को लेना है। मैंने क्या देखना है? डिफरेंस देखना है। ठीक है बेटे? अगर क्लोरीन ऑक्सीजन का बॉन्ड बना तो तुमने जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उससे चलना है। ऐसा नहीं करना है कि क्लोरीन माइनस ऑक्सीजन या ऑक्सीजन माइनस क्लोरीन। आपको सिर्फ प्रभाकर क्या देखना है? ज्यादा माइनस कम।
Yes, sir. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.7 आए, इज इक्वल टू 1.7 आए, ग्रेटर देन 1.7 आए, तो वो हमें बताएगी द मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7, द बॉन्ड इज गोइंग टू बी, मैंने गलत लिख दिया गुड़िया, द मेनली आयोनिक करेक्टर, ठीक। एंड इफ इट इज लेस देन, अच्छा नहीं वो लेस ही था, सॉरी बिल्कुल ठीक था, सॉरी बिल्कुल ठीक था, सॉरी सॉरी, पता नहीं मैंने कैसे साइन पकड़ा। तो अगर इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, एक मिनट रुकना यार, एक मिनट रुकना, ठीक है, सॉरी आई वाज थिंकिंग, सॉरी, इट इज लेस देन 1.7 चुग, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज मेनली कोवेलेंट करेक्टर वाला। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 हुआ, so that is going to be known as mainly ionic bond. Ionic और character. अगर 1.7 आ गया प्रभाकर दीदी, so this is going to be 50% covalent and 50% ionic. Ionic. मेरी बात को ऑब्जर्व कर, that is the more the delta electronegativity, the more is ionic character. बिल्कुल सही, Ionic. more is, हाँ बोलो बोलो, सर ये 1.8 भी हो सकता है कि 1.8 से अबव? हाँ बेटे, कई बुक्स इसको 1.8 भी बोलते हैं, तभी तो मैंने आपको पहले कवर कर दिया ना। तो मोटे तौर पे इधर ध्यान करो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, द मोर इज गोइंग टू बी द आयनिक करेक्टर। तभी मैंने ऊपर लिख दिया था, किसी किसी बुक में ये 1.8 भी आपको मिल सकता है, और एनसीईआरटी इसकी बात नहीं करती है, अदरवाइज हम सारे एनसीईआरटी को फाइनल मान लेते हैं। समझ आ गया? अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग प्रेडिक्शन करते हैं, तो हम कहते हैं अलग अलग स्कूल्स हैं के, तो 1.7 और 1.8, बट हम सब इस बात को मानते हैं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा अग्रिम जी? द आयनिक करेक्टर। गुड, आप म्यूट कर सकते हैं, और कनौजिया आप हमारे से बात करेंगे। सो कनौजिया, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट 1.7 को मानना है। बेटे याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम आपको बताएंगे। If electronegativity of chlorine is 3.16, oxygen is 3.44, right? Predict whether the chlorine oxygen bond in Cl2, चुप मेरे से बात करो, अंशुर का माइक नहीं चल रहा है, will be covalent or ionic. अच्छा चल रहा है, गुड गुड कनौजिया, बात कर फिर। तो this is chlorine and oxygen. तो अंशुल आपने ज्यादा माइनस कम करना है दोस्त, है ना? तो 3.44 माइनस 3.16 राजा कितना आ गया? 0.28। 0.2। तो 0.28 काफी कम है 1.7 और 1.8 से, तो इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी कौन सा होगा? मेनली कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स हैं, वो हम आपको वैल्यू बताएंगे, आपने इसकी टेंशन नहीं करनी है, आपको हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई जाएगी। इट इज समथिंग द मैथमेटिकल है या मेजर्ड है, तो आप इसको या मैं भी नहीं याद कर सकता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आपको भी मैंने बताया हुआ है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑर्डर में कम होती है। हम क्या टॉपिक कर रहे हैं? हम मेथड्स ऑफ प्रेडिक्शन ऑफ आयनिक या कोवेलेंट करेक्टर कर रहे हैं। पहला आपको क्या कराया गया था? एलिमेंट्स ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल combines with the elements of extreme right hand side to form mainly कौन सा बॉन्ड? द आयनिक बॉन्ड। और देखो अभी भी मैं वही कर रहा हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सो डेफिनेटली ये और ये अगर आपस में कंबाइन करेंगे तो उनमें प्रीडोमिनेटली कौन सा करेक्टर होगा? द आयनिक करेक्टर होगा। ठीक, आन्या अरोड़ा बात कर सकता है? देख आन्या, क्लोरीन ग्रुप 17 का मेंबर है, ऑक्सीजन गुड़िया ग्रुप 16 का मेंबर है, तो आन्या अरोड़ा इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत कम होगी डिफरेंस, तो डेफिनेटली बेटे, तो आपने अभी अभी जो प्रिडिक्ट किया था क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड में कौन सा करेक्टर ज्यादा होगा? द कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। कोई भी पॉइंट
दूसरे पॉइंट को काटेगा नहीं, उसको बिल्कुल मानेगा। सारे पॉइंट अलग अलग प्रेडिक्शन करेंगे बट आंसर वही निकलेगा। देयर इज नो लड़ाई, नो फाइट बिटवीन एनी टू कॉन्सेप्ट्स। राइट अन्या, सुन पा रहा है बेटिया? Yes, sir. अन्या Yes, आगे sir. चले। So Anya, Yes, sir. we have done how many methods? 2 methods. Budiya, Two methods. you will not find this method in your NCERT. Let's be clear. तो Yes, तो sir. Anya, आपके सेशन बनाने से पहले I do my homework. Believe me, आपका सेशन बनाने के लिए मुझे तकरीबन I'm not joking, 2.5 से 3 घंटे लगते हैं for 1.5 hour बनाने के लिए। 1.5 hour कैसे? क्या आप बेटे ये जो अभी जितना भी होगा इसको into 2 times टाइम देते हो? All of you remember, Yes, sir. एक दिन केमिस्ट्री की 2 घंटे की क्लास लगी है। Ideally चुग, you need at least double times to absorb it. And absorption ऐसे नहीं होगी कि तुम इसको एक बार पढ़ लोगे, भूल जाओ। Right? Why I always start every time, अपने सारे सेशंस में देखना, I always start with the previous session. This is just for better absorption. Absorption इस वक्त हम intellectual आपकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो बेटे अच्छा सा प्लीज टाइम इन्वेस्ट किया करो, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं। If you think that sitting in front of a computer or opening a notebook can make you a good scientist, a happy person, forget it. थॉट जितनी जितनी आएगी उतना ही आप अच्छे इंसान बनने वाले हो। तो अरोड़ा देख ले, जितना भी टाइम मैं लगाता हूँ बेटे, कम से कम एवरी डे into 2 times you need input in terms of sitting. अमोदनी इतना नहीं होता ना, मेरे को पता लग जाता है अमोदनी कितने आज तू पढ़ता है, पक्का नहीं पढ़ता Yes, ना अभी, sir. चल कोई बात नहीं। अमोदनी आज से be a good daughter, be a good student. Okay अमोदनी, Yes, promise? sir. अन्या Yes, sir. पक्का जी? Yes, Yes, sir. that's the way. It is always an improvement बिटिया, है ना, मैं बताता रहूंगा but you have to follow. Hennessmuth formula, Anya, is a better formula, better than जो हमने आपको पीछे कहा था 1.7 rule. This gives you exact prediction that what is going to be the percentage ionic character. इंसान ने ये फॉर्मूला बनाया। तो देख अरोड़ा, अगर डिस्टर्बेंस किसी के पास भी बाय चांस होती है बेटे, सो डोंट हेसिटेट, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं प्लीज। सो इट इज वैलिड फॉर ऑलवेज। तो अरोड़ा गुड़िया, तेरे को पता है अभी काई ए माइनस काई बी को हमने डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला था। तो 3.5 into difference in electronegativity squared plus 16 into difference in electronegativity. तो अरोड़ा मैंने कैसे याद किया था इसको, देखो 3.5 छोटा है ना, तो उसको काई ए माइनस काई बी का स्क्वायर कर दिया और 16 इंटू काई ए माइनस काई बी, जो ये सिर्फ याद करने का तरीका था। राइट, नोट डाउन दिस रिलेशनशिप इन द रफ पेज। इसको रफ पेज में लिखो इस रिलेशनशिप को, बिकॉज मुझे अगले पेज पे इसको यूज करना है। एवरीबॉडी प्लीज राइट इट। लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लिख लीजिए। हो गया? चलो जी आगे चलते हैं। यस, दिव्यांशी बात करेगा? यस दिव्यांशी, दिव्यांशी Sir, done. Yes, sir. यूज दिस रिलेशनशिप। कैलकुलेशन आप करेंगे प्लीज, ठीक? Calculate percentage ionic character in chlorine oxygen bond in Cl2O, right? Chlorine oxygen bond. देख तुम्हें तो वैसे ज्यादा पता है, तेरे को पता है क्लोरीन क्लोरीन ऐसा होता है, राइट? इसके ऊपर लॉन पेयर होते हैं, so this is going to form bond like this. अभी थोड़े समय में आपको पता लगेगा क्लोरीन की वैलेंसी सिर्फ एक होती है, आपको पता ही है। तो which is going to be चुक सेंट्रल एटम इस वक्त? द ऑक्सीजन। पता है ना क्लोरीन की वैलेंसी एक होती है, क्लोरीन से आप ऐसा बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी वाटर जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज गोइंग टू बी देवांशी। जैसे वाटर में H होता है ना, ऐसा है। हम आपसे पूछने वाले हैं कि हमें बताएगी देवांशी कि इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर एग्जैक्ट कितना है। बढ़िया, वैल्यू वही जो आपको बताई थी। तो क्या फॉर्मूला यूज किया?
3.5 into difference in electronegativity square. I hope you Plus understand. Plus 16 into difference in electronegativity. I'm just using the relationship which I asked you to copy. Use calculator and verify. Is this true? Use calculator, no problem. Yes, sir. Is it true, Uday? Sir, I'm checking. Wait. Okay, बेटा, I'll wait. इससे मेरे को भी अपनी कैलकुलेशन पे वेरिफिकेशन हो जाती है. डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक जाना सर बस. 4.75 आ रहा है. एक बार और आंसर आने दो बेटा. अंशुल, एक दो का आ जाता ना, 3 आंसर से मुझे वेरिफिकेशन आ जाती है. ओए गायकी चुप कहाँ है? जसलीन का डू इट. 4.75. 4.75. 4.75. Yes, sir. इसका मतलब मेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ है ना, तो आपका आंसर सही है 4.75%. इज इट ओके? कैन आई मूव अहेड? पक्का है तुम लोगों ने वेरीफाई किया था? 0.28 किया है आपने? यस Yes, सर. sir. 0.28 किया? Yes, sir. कैलकुलेटर में क्या एरर था कि मैंने ये गड़बड़ की है? 3.5 into 0.28 into 0.28 0.27. Okay, that was a mistake. This answer was 0.27. पता नहीं कैसे मैंने इसको गड़बड़ कर दिया था. So that is 4.75. आपकी कैलकुलेशन सही है, मेरा यहाँ पे एरर था. So this is giving you exact percentage ionic character. जबकि पीछे देखिए 1.7 तो आपको सिर्फ बता रहा था कि this is going to be mainly covalent. ionic character इसमें बहुत होगा. But this is going to tell you it is going to be क्या होगा? Mainly, हाँ जी बेटे, Covalent. covalent. और expected था ना. आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 इनकी तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत क्लोज है, सो दे आर एक्सपेक्टेड टू फॉर्म विच मेनली कोवलेंट. देखो सबके पीछे एक ही चीज चल रही है, जितना इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे दोस्तों जंप मारेगा, और जब वो जंप मारेगा तो कौन सा करेक्टर लेके आएगा? देवांशी, द आयनिक करेक्टर लेके आएगा. राइट देवांशी? चल भी जरा गायकी की आवाज सुननी है, ठीक भी है कि नहीं है? गायकी दीदी. यस सर, ठीक हूँ मैं. राइट. तो गायकी परसेंटेज आयनिक करेक्टर चौथा रास्ता बेटिया. तो Yes, नोट्स sir. बनाता है ना अपने हाथ से? यस सर. वो जरूर बनाने हैं, क्योंकि वही तो तुम्हारा दिमाग एक्सेप्ट करवाता है ना. सारी जिंदगी जितना Yes, मर्जी sir. बड़ा साइंस क्यों ना बन जाना, जो इंपॉर्टेंट चीज होगा ना उसको जरूर कहीं पे लिख के रखना. तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज म्यू ऑब्जर्व्ड बाय म्यू थ्योरेटिकल. ये म्यू क्या है गुड़िया? Dipole moment. बिल्कुल सही. जो पढ़ के और बेटर कर. मेजर ऑफ Measure of पोलैरिटी. ऑब्जर्व्ड कौन सा है? ऑब्जर्व तो एक्सपेरिमेंटल है ना जी. ऑब्जर्व्ड इज एक्सपेरिमेंटल है कि हमें किसी तरीके से मेजरमेंट से पता लगता है. और दोस्तों म्यू थ्योरेटिकल पढ़ लेंगे ना, दैट इज गिवन बाय ई इनटू डी. तो गायकी मैंने सिर्फ रिविजनरी मोड में डाला है. ई की वैल्यू तुम्हें आनी चाहिए गुड़िया. यस सर. ऊपर वाली एसआई में है, नीचे वाली सीजीएस में है. और डी हम Yes. आपको बताएं, अगर ऊपर वाली लिया तो डी को किस में लेगा? मीटर में. अगर मीटर्स नीचे में. वाली लिया तो उसको किस में लेगा? द सेंटीमीटर. सेंटीमीटर्स. Repetition makes us perfect. It is 1.8, sorry 4.8. 4.8 into 10 raised to the power minus 10 ESU. नहीं 10 into 8 हो गया ना. डिवाई 1 डिवाई किसके बराबर था? -18 ESU सेंटीमीटर. ठीक बच्चों, अभी पता लग जाएगा -18 ही क्यों आता है. अभी पता लग जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो होती है ना वो एंगस्ट्रॉम में होती है, एंड 1 एंगस्ट्रॉम is equal to 10 raised to the power minus सर minus 10. ओके ठीक है. सेंटीमीटर. 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 यस सर ठीक है. तो अगर सेंटीमीटर में होगा तो इसको -10 एंड -8 को मल्टीप्लाई करेगा तो तेरे पास क्या आ जाएगा? -18. गुड गायकी. ईशान, अगर माइक चलता है तो बात कर. ईशान, क्वेश्चन है
अगर ईशान का माइक नहीं काम किया तो ईशिता भी रेडी गुड़िया। तो ईशिता क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, let mu observed is 1.2 dBi. You have to understand, उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है। For AB, a hypothetical bond, calculate the percentage ionic character in it if the bond length internuclear distance is 1 angstrom. अभी तो मैंने बता दिया है, बट एग्जामिनर आपको नहीं बताने वाला है। You have to imagine the units आपके दिमाग में जाएगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू बी यूज्ड? कपूर ये वाला फॉर्मूला यूज करेगा ना? Yes, sir. म्यू ऑब्जर्व्ड उसने बता दिया, म्यू थ्योरेटिकल हम कैलकुलेट करेंगे e into d से, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, so that will give us our answer. तो म्यू थ्योरेटिकल इज e into d. e की वैल्यू ईशिता कपूर आपसे सुनना चाहता हूं। 4.8 into 10 raised to power minus 10. आगे ये बोलो, into What 10 is raised to power ES? minus 10 तो मुझे पता है, ESU अरे माइनस ये पूरा बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेट। CGS system. Connection problem. ओके ओके कोई बात नहीं ईशिता। तो इट इज गोइंग टू बी -10 ESU into -8 सेंटीमीटर। सो कपूर डोंट वरी। तो कपूर आपको समझ आ गया मैंने -8 सेंटीमीटर क्यों लिया? क्योंकि CGS। तो गुड़ी ये तेरे पास कितना आ गया? 4.8 into -18 ESU सेंटीमीटर। -18 ESU सेंटीमीटर को मैं डिवाइड लिख सकता हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी ऑलवेज कौन सा स्टेप होगा? फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे? 1.2 आपको गिवन था, 4.8 into 100 that is 25%, that is going to be the corrector. That is going to be the another formula of measurement of the percentage ionic character. देखिए अगर आप सोच सकते, हाँ बोलो चुप बोलो। सर इतना फर्क है सर ऑब्जर्वेशन में, एक्सपेरिमेंटल में और जो थ्योरेटिकल निकाला हमने? अभी बताता हूँ बेटे, बट हाँ डेफिनेटली बेटा ये तेरी मतलब साइंस ही है ना, हमेशा 100% नहीं जाएगा, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। अब देख चुक एक बात बता, लेट बी अ बॉन्ड, ठीक, अगर ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, लेट इट बी, ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट इसकी तरफ आ, तो ऐसा करने से भाई साहब आपको क्या मिलेगा? इसके ऊपर कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस कितना चार्ज ट्रांसफर करता मेरे दोस्त? 4.8 into 10 power minus 10 ESU. ऐसे ही बोल दिया, लेट दिस डिस्टेंस बी 1 डिवाइड इनटू -8, सो ये कितना होना था? 4.8 डिवाइड। बट आपको तो बताया ये पूरे का पूरा ट्रांसफर नहीं होगा, बेशक आयनिक है तो भी पूरा ट्रांसफर नहीं होता। तो ये यहाँ पे होना चाहिए था, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ पे पाया गया, तो क्या ये चार्ज कंप्लीट ट्रांसफर हुआ? नो सर। 4.8 का सर्टेन फ्रैक्शन ही ट्रांसफर हुआ ना। अब जितना ज्यादा वो बी की तरफ जाएगा उतना आपके पास आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, उतना आपके पास जो म्यू ऑब्जर्व्ड है वो ज्यादा होगा। समझ आया? यस सर। तो अगर वो कंप्लीट जाता ही नहीं है तो वो म्यू भी तो उतना नहीं होगा। मेरे और आपके बीच में एक रिश्ता है, तय ये हुआ था कि मैं पूरा इलेक्ट्रॉन आपको दे दूंगा, बट उसको हमेशा कभी कोई मानता ही नहीं है, ना मदर नेचर मानती है। मैं ठीक है आपको देता तो हूं, बट पूरी अपनी नजर से नहीं जाने देता। कहने को तो मैंने डोनेट किया है, बट फिर भी वो मेरे और आपके बीच में शेयर्ड है। सो दैट इज अ रीजन बेटे इतना फर्क हो सकता है, ठीक। तभी तो हम ये टॉपिक कर रहे हैं, मेथड ऑफ प्रेडिक्शन ऑफ परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर एंड मेथड ऑफ प्रेडिक्शन ऑफ परसेंटेज द आयनिक कैरेक्टर। अब एक बार रिवीजन में डालो, हमने कौन से मेथड किए? LHSP सो केटायन होते हैं, और दूसरा शायद मुझे लगता है 1.7 रूल। तीसरा कौन सा कराया? अरे पढ़ के बताओ।
आए बोला कराएगा। हाँ, एन स्मिथ फॉर्मूला किसी को नहीं याद होता, चिंता मत करो। अगर तुम्हें नाम नहीं याद हुआ तो दैट इज यू आर नॉर्मल। अगर तुम एक ही बार में याद कर लेते हो तो दैट इज प्रोबेबली तुम इस धरती पे कभी कभी अवतार लेके आए हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉमेट मिस्टेक, हेमिट स्मिथ फॉर्मूला। उसके बाद क्या किया था? म्यू, हाँ जी, observation by upon observed upon into units 100 into 100. got it? तो जो म्यू ऑब्जर्व्ड होगा, अभी भी आप लोगों ने मुझे बताया, म्यू थियोरेटिकल से हमेशा क्या होगा? कम होगा, तभी तो ये इस प्रकार से जाएगा। थियोरेटिकल में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने माना है ना जी, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन माना, जबकि इसमें देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी कंप्लीट, तो कभी होना ही नहीं। अगर कंप्लीट हो गया तो कौन सा आ जाएगा? 100% आयनिक। इसमें क्या होगा बेटे? पार्शियल ट्रांसफर। Transfer. अभी तुम्हारा बेस बन रहा है ना, एक लेक्चर बीच में स्पीड तोड़ देनी है मैंने, तो उसमें मैंने सिर्फ तुम्हारे से ऑब्जेक्टिव ही कराने हैं, तो फिर आपको और कॉन्सेप्ट की और बेहतर आप समझ पाएंगे। चलो जी, तो जसलीन का और अगर माइक काम करता है तो मेरे से बात कर, राइट जसलीन? Yes, sir. और डॉली तेरे को बताया था कि अगर एटम होता है और अगर केटायन होता है और अगर एनायन होता है, याद आया? इधर जाते हुए अभी ना साइज क्या करता था? increase याद आया? पक्का, ठीक है नहीं? इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से Z इफेक्टिव और जसलीन बढ़ जाता है। तो केटायन का साइज is going to be smaller, anion का size is going to be this. Discussion is important. The cation is generally smaller in size than anion. किसी को conceptually A statement नहीं आती है, मेरे से बात करें। This is the A statement. Good. Nobody has any objection. Then this thing called B statement. Cation has more Z effective on the outermost electron. आपको पता है गुड़िया Z effective क्या होता था? Z effective is Z minus screening constant. Outer electrons are screened from nuclear charge by inner electron. So cation has more Z effective on outermost electron. Everybody clear with statement B? Sir, sigma क्यों लिखा है? सिग्मा को बोलता है जसलीन का स्क्रीनिंग कांस्टेंट। Okay, sir. इसको सिग्मा भी बोल सकता है गुड़िया और इसको एस भी बोल सकता है, दोनों एक ही चीज है। Okay, समझ sir. गया? गुड। नमन बात कर अगर हो सकती है गुड़िया। तो नमन, केटायन स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनायन टुवर्ड इटसेल्फ। नमन समझा? अगर मेरी क्लास एक ऑप्टिमम साइज की है तो मैं आज आप सबसे बात कर पा रहा हूं। अगर मैं यही क्लास 80, 90, 100 स्टूडेंट की ले जाऊं तो क्या मैं चुक से, क्या मैं गायकी से, क्या मैं रिया से, रोहित से बात कर पाऊंगा? मैं बार बार पीपेट को बुलाता हूँ, उत्कर्ष को, उत्कर्ष मेरे से बात कर, तो इसीलिए हो सकती है ना उत्कर्ष, बिकॉज आई कैन हैव फोकस ऑन यू, बिकॉज आपके ऊपर मेरी फोर्स ज्यादा है। वही उत्कर्ष इस वक्त मेरा लास्ट स्टूडेंट बैठा है, यू से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट हो आप सारे के सारे। तो अगर उत्कर्ष तक जाते जाते टॉप पे मैं बैठा हूं, हमारे बीच में 80 स्टूडेंट आ जाते हैं, तो क्या मैं आपके ऊपर ध्यान कर पाऊंगा चुप? क्या उत्कर्ष आपके ऊपर ध्यान कर पाऊंगा? नो। नो सर। जितना छोटा साइज होगा, छोटे साइज से क्या मतलब होता है हमारा? न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, उतना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होगा। क्यों भी उत्कर्ष समझा ना कॉन्सेप्ट को? अब अगर ज्यादा होगा, मैं आपको तो अट्रैक्ट करता ही हूं, हो सकता है मैं आपके किसी दोस्त को भी अट्रैक्ट कर लूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं आपको अपनी ओर खींचता हूं, तो मेरी फोर्स आपके ऊपर ज्यादा है। ऐसा थोड़ा कि वो खत्म होगी, वो उससे बाहर भी तो जा रही है। जबकि एक क्लास का साइज इतना बड़ा है कि वो टीचर किसी से बात ही नहीं करता है, किसी से बात लिंक बना ही नहीं सकता है, तो वो अपने बच्चों को तो क्या पकड़ेगा, रेदर अपने बच्चों को तो लूज कर देगा। टेक इट इन दैट वे। आई होप यू अंडरस्टैंड। पीपल, ये बात समझ आई? बड़ा जो एटम होता है एनायन,
उसके इलेक्ट्रॉन उसके कंट्रोल में ज्यादा नहीं होते हैं। जो केटायन होता है उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज्यादा खींचते हैं, जिसकी वजह से the cation start attracting electronic cloud of anion toward itself. That is, it starts polarizing the anion toward itself. Picture को समझो रिया शर्मा? This is cation, this is anion. The cation is attracting anion के cloud को, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है। क्या आप ये सिंबॉलिकल पिक्चर समझ पा रहे हैं? इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड केटायन की तरफ खींचा है और मैंने क्या वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। जो दोबारा बोल, क्या बोला? पोलराइजेशन मैं सुनना चाहता हूं आपके मुंह से बेटे। सो पोलराइजेशन मतलब जैसे केटायन एंड आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए दोनों साइड जनरेट होंगे और इसको पोलराइजेशन कहेंगे। बिल्कुल सही। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जब तुम जवाब दोगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है? आपने बिल्कुल सही बोला बेटे। मुझे बताओ केटायन और एनायन, पॉइंट में पूछ रहा हूँ, केटायन और एनायन में कौन छोटा है? सो केटायन। किसका Z इफेक्टिव मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ज्यादा है? केटायन। तो किसके इलेक्ट्रॉन किसकी ओर खींचेंगे? एनायन के इलेक्ट्रॉन केटायन की तरफ। इसको क्या बोलेगा? पोलराइजेशन। वेरी गुड। तो मैं कह सकता हूं केटायन पोलराइज करता है और एनायन पोलराइज होता है। राइट। जो छोटा भाई है, बहन है, कजन है ना, जो इमेजिन कर, उसका नाम बता। छोटा भाई बहन, जो बड़ा भाई बहन, किसी का भी नाम बता। सिद्धांत। सिद्धांत। तो चुग और सिद्धांत, हालांकि वो भी चुग ही है, तो चुग और सिद्धांत एक कमरे में बैठे हैं, एक घर में बैठे हैं। सो चुग, तुम आपस में चीजों को शेयर करते हो, राइट? अब 2022 आता है, हमारा चुग दिल्ली शिफ्ट हो जाता है, राइट? और अब चुग और सिद्धांत आपस में चीजों को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। क्या आप अपने कपड़े, क्या आप अपने वीडियो गेम्स, क्या आप अपने और इंटरेस्ट की चीजें शेयर कर पाओगे अगर आप में डिस्टेंस हो? नो। शेयरिंग कब होगी? जब आप एक ही जगह पे बैठे हो। मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये आपको अगला रूल बताने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल में घुसने वाले हैं, फाजन्स रूल आने वाला है। अगर आप एक दूरी से ज्यादा नजदीक हो जाएंगे, यू विल स्टार्ट शेयरिंग द थिंग्स। इफ यू आर अपार्ट, यू विल बी ट्रांसफरिंग द थिंग। ट्रांसफरिंग द थिंग की जगह पे अब इलेक्ट्रॉन डालो। अगर केटायन और एनायन के बीच में, दो एटम के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस है, देन इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड। अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपस में मर्ज हो गए हैं, देन विच कॉन्सेप्ट विल बी कमिंग? द शेयरिंग कॉन्सेप्ट will be coming, the covalent concept will be coming. If the polarizing power, if, ध्यान से सुनिए प्लीज, if the polarizing power of cation is too much, polarizing power को मैंने वर्ड यूज कर दिया है PP, right? Polarizing power of cation is too much, it can polarize the electronic cloud of anion towards so much that दोनों इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आर गोइंग टू बी मर्ज्ड, ब्रिंगिंग कौन सा करेक्टर? कोवेलेंट करेक्टर। दोबारा देखो, कोवेलेंट करेक्टर। इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनायन आर फीलिंग अट्रैक्शन टुवर्ड दैट। ये हम थोड़ी सी पोलराइजेशन होते दिखा रहे हैं, और अगर ये पोलराइजेशन की पिक्चर ज्यादा होगी, इसके इलेक्ट्रॉन एनायन के, बेटे गलती से भी ठीक कर देता हूं, ये पॉजिटिव साइन आ गया है, आप समझते हो ये नेगेटिव है। दिस इज गोइंग टू मर्ज इनटू दैट एंड दिस इज गोइंग टू बी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। कौन सा कॉन्सेप्ट है? आयनिक कॉन्सेप्ट। दिस इज गोइंग टू बी शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। कौन सा कॉन्सेप्ट है? द कोवेलेंट कॉन्सेप्ट। आप समझे हैं हमने क्या कहा है? द डिस्टेंस एक फर्क लेके आएगा। अगर केटायन और एनायन दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए तो कौन सी पिक्चर आएगी? कोवेलेंट। यही तो मैं बोल रहा था, आप दो भाई बहन एक घर में रहते हो तो आप चीजों को शेयर कर सकते हो। हमने एक को उठा के आपसे 6000 किलोमीटर दूर भेज दिया है, नाउ यू कैन नॉट शेयर द थिंग, नाउ ट्रांसफर। दूरी होनी, कौन सा कॉन्सेप्ट? आयनिक कॉन्सेप्ट।
और नजदीकी होनी कोवेलेंट कंसेप्ट। और ये ड्रामा कौन कराएगा? केटायन और एनायन की पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी कराएगी। Therefore, we say the cation has polarizing power. याद रखना, the smaller the cation, the more the polarizing power. अरे एक टेनिस की बॉल के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक फुटबॉल के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, किसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है? आप लोगों से सुनना चाह रहा हूँ। बॉल। टेनिस। टेनिस बॉल। गुड। अभी आप लोगों से सुनना चाह रहा हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, रेडियो एक्टिव की बात नहीं करेंगे, किसकी सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर है? लिथियम। वेरी गुड। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए वर्ड ऑब्जर्व करो, पीपी का मतलब पोलराइजिंग पावर क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। गुड, वेरी गुड। तो वंशिका, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वंशिका, ट्राई अनम्यूटिंग यू। राइट, यहाँ पे कोई किसी की शक्ल नहीं देखता, तो अगर आप गलत भी बोलते हो तो इट इज नो प्रॉब्लम। ये जो जसलीन कौर है मेरे से बहुत लड़ती है, अनन्या प्रभाकर भी बहुत लड़ती है, देखिए लड़ते रहते हैं मेरे से, है ना प्रभाकर? फिर भी ये क्वेश्चन पूछते रहते। तो चल वंशिका, ऑन द बोर्ड। वंशिका, अगर एक बड़ा आयन होएगा तो गुड़िया उसके इलेक्ट्रॉन केटायन की तरफ खींचेंगे और हम वर्ड यूज करेंगे एनायन हैज पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी के लिए आपकी क्लास नोट्स में गुड़िया मैंने ये एब्रिविएशन बनाई है, PBTY। अंडरस्टूड? एनायन हैज पोलराइजेबिलिटी। The larger the anion, the more the probability. आपके X टीचर की क्लास 200 स्टूडेंट्स की है, आपके X स्टूडेंट की क्लास 500 स्टूडेंट्स की है, तो किसके स्टूडेंट उससे कम सेटिस्फाइड होंगे? आप समझ सकते हैं किसके स्टूडेंट किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? The more the size, the more is going to be the probability, polarizability. Now गुड़िया, you please answer thinking कि अगर मैं फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड की बात करूं, ठीक, फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड की बात करूं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड की बात करूं, तो इधर जाते हुए साइज क्या कर रहा है? Increase. तो which has maximum polarizability? आयोडाइड। वेरी गुड। तो PBTY क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है जी, PBTY is going to increase. Polarizability increases as size increases. Polarizing power decreases as size. This is going to be an important thing जो मेरे आने वाले डिस्कशन में अंदर में फर्क डालने वाला है। हम पहुंच गए हैं अपने फाजान्स रूल। It is one of the very important pillar of your chemistry understanding. Fazan's rule says the following situations brings more covalent character. Importance की वजह से मैंने very लिख दिया है। More covalent character in the given bond. Small cation, large anion, अभी सिर्फ लिख रहा हूँ, अगले पेजेस के ऊपर एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। छोटा cation, large anion, filled d orbital outermost shell. This is also known as pseudo noble gas configuration. D orbital. You must remember that D orbital do not, हाँ जी बेटे, किया हुआ आपने, shield well. Do not shield well because of diffuse shape. तो अगर आप कहीं पे D10 कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, D10 का मतलब शील्डिंग हुई नहीं है, तो इनका Z इफेक्टिव क्या होगा? हाई होगा। हाई। Z इफेक्टिव हाई होगा। अगर Z इफेक्टिव हाई होगा तो ये पोलराइजेशन ज्यादा करेगा। लेट्स सी, दोबारा आएगा, चिंता मत करो, हम इसको एक एक पॉइंट को देखते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। सो हम एक एक पॉइंट को उठा रहे हैं, एक बार स्मॉल केटायन, एक बार लार्ज आयन, एक बार इसको PNGC बोलूंगा। स्यूडो मतलब नकली, नकली नोबल गैस। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पता है ना क्या आती है? NS2 NB6। दिस इज द रियल नोबल गैस, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। राइट, ठीक है। तो
उत्कर्ष मेरे से बात कर भाई। उत्कर्ष, जितना छोटा केटायन होगा उतनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, ये तुमने मुझे पिछले पेज पे बताया, यस और नो? यस सर, यस सर। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम दो साइज इंक्रीज करेगा, मानता है। यस सर, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज करेगी, मानता है। यस सर, Therefore, this is going to form more ionic character, क्योंकि छोटा केटायन अपने साथ कौन सा करेक्टर लेके आएगा दोस्त? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर ज्यादा लेके आएगा। तो बेटे अगर मैं लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पिपेट क्वेश्चन पूछ, ठीक, सीजियम क्लोराइड, जब ये पेज पलटू आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पिपेट लिथियम का साइज सबसे छोटा है, यस सर, दिस इज देख वही चीज समझा रहा हूँ। स्मॉलेस्ट केटायन, स्मॉलेस्ट केटायन का मतलब मैक्सिमम क्या होगी? पोलराइजिंग पावर। Polarizing power. तो ये क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन को अपने शेल के अंदर खींच लेगा, तो इसका मतलब पिपेट इसके अंदर मोर कौन सा करेक्टर होगा? कोवेलेंट कोवेलेंट। गुड। आपको जानबूझ के प्रैक्टिस कराने के लिए अब सीजियम पे बात करूंगा। इसका साइज इज लार्जेस्ट है बच्चों, लार्जेस्ट, यस सर, यस सर। लार्जेस्ट साइज है, तो ये लो अपने पी, ही को ही ज्यादा नहीं संभालेगा, तो दैट इज गोइंग टू बिल्कुल सही। मैं मिनिमम वर्ड यूज कर रहा हूं, पोलराइजिंग पावर। Polarizing यस सर, power. अंदर लीस्ट। लीस्ट कोवेलेंट। और बेटे जरूरत पड़ी तो ये भी बोल सकता है ना, मोस्ट आयनिक बॉन्ड, यस सर, आयनिक करेक्टर। उत्कर्ष द ग्रेट आयनिक करेक्टर, ठीक, क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। बिल्कुल सही। तो अभी थोड़ी देर में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाई लिथियम mainly forms covalent compound? Expected is it is going to form which compound? The ionic compound. तो Right, डाउट था तो पूछ यार, सर, पोलराइजेशन से तो सर आयोनिक कंपाउंड्स ही बनते हैं। किसने कहा? तो इसका मतलब मैंने आपको कोई स्टोरी फालतू की सुनाई? कैसी बात कर रहा है यार, क्यों मजाक सर मत। आयोनिक कंपाउंड्स में से चार्ज उनके ऊपर होते हैं। ये क्या लिखा था? केटायन हैज मोर पोलराइजिंग पावर, जितनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, तो इसका मतलब हमने यह झूठ किया था? नहीं, गलत सोच रहा है, पता नहीं कहाँ कंफ्यूज हो रहा है। जितना केटायन का साइज, हाँ आगे समझ। तो ऐसे मत किया कर, क्वेश्चन पूछने से पहले खुद समझा कर। ओके बच्चे, चल अब बात की है, मैं से पूछ, अब मैं तेरे से पूछूंगा। तो अंकल, तू नाराज तो नहीं होता? मैं ऐसे अंकल बोल देता हूँ यार देखो, है ना, आई ट्रीट यू एज अ फ्रेंड। सो चुग, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं मेरे भाई, वाटर सॉल्युबल होते हैं, यस और नो? यस सर। Yes, पोलर sir. पोलर में डिसॉल्व करता है यार। और जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं बेटे, वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल, देख नॉलेज तो बढ़ेगी बढ़ेगी। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन जैसे, ये इनके बारे में खास बात क्या है? ये नॉन पोलर होते हैं। और जो नॉन पोलर होते हैं, यानी कि जो कोवेलेंट होते हैं, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर घुलते हैं। डोंट राइट, कभी देखना माँ के पास खड़े होके कि जब हम घर में सब्जी को तड़का लगाते हैं तो देखना माँ क्या हल्दी पानी में डालती है कि ऑयल में डालती है? कभी ऑब्जर्व किया तुम लोगों ने? तुम्हारी Yes, बेस्ट sir. इन योर किचन, राइट? पानी में डालते हैं। चले आज माँ से पूछना, तेल में डालते हैं। ऑयल में डालते हैं। तेल में डालते हैं। जब तुम तड़का बना रहे होते हो अंकल, तो उसके अंदर हल्दी आप उसमें डालते हो। हल्दी इज सॉल्युबल इन ऑयल। आज करके देख लेना चुप, राइट? थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लेना, एक चम्मच, एक शीशे की कटोरी में, एक चम्मच पानी लेना दूसरे शीशे की कटोरी में, बिल्कुल मतलब आप चावल के दाने के जितनी हल्दी लीजिएगा और उसको जो ऑयल लिया था उसके अंदर डाल देना। चुटकी भर, चुटकी से भी कम, बिल्कुल चावल के दाने के जितनी पानी में डाल देना और थोड़ा सा उनको हिलाना किसी टूथपिक से। यू विल सी जो ऑयल ड्रॉपलेट है ना वो पीली हो जाएगी और जो पानी के ऊपर हल्दी एक सेपरेट लेयर बना के तैर रही होगी। तो covalent are soluble in organic solvent. Oil is an organic solvent.
पानी इज द पोलर सॉल्वेंट, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एनीवे, अब बताओ दोस्तों, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मैं जिससे पूछूंगा वो बंदा जवाब देगा, ठीक, बाकी कोई जवाब नहीं देगा। तो ये जब भी क्वेश्चन पूछूंगा वही बंदा जवाब देगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। ओके, सो दैट इज, आई वांट टू मेक श्योर दैट क्लास को समझ आया। वंशिका सूद, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। वंशिका सूद, प्रिडिक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। यस वंशिका, बी विद मी। मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर इन सॉल्युबिलिटी का मतलब मोर आयनिक करेक्टर, मोस्ट आयनिक करेक्टर और लीस्ट आयनिक करेक्टर। यस सूद, जल्दी जवाब दो वरना मैं किसी और को बुलाऊंगा। More ionic character. Very good, that is going to be most ionic, agreed sir. So अब मुझे बताओ, लिथियम और सीजियम में से कौन ज्यादा आयनिक होगा? Sir, cesium. वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला, मोस्ट आयनिक होगा गुड़ी। अगर ये मोस्ट आयनिक होगा तो संभालना, इधर जाते हुए कौन सा करेक्टर बढ़ रहा है बेटिया? Covalent. नहीं, आपने बोला था Ionic. और किसके अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है? Water. Very good. Solubility in water increases. Perfectly well. What are we doing, बंचेगा? We are doing Fazan's rule. Fazan's rule ने क्या कहा था? जितना छोटा केटायन होगा उतना कौन सा करेक्टर होगा? कोवेलेंट होगा। ये आपने बोला है। This is going to be बेटे कौन सा होगा? Most कौन सा करेक्टर? Covalent. कोवेलेंट कैरेक्टर। बड़ा केटायन होगा उतना कौन सा करेक्टर होगा? आयोनिक करेक्टर, क्योंकि छोटा केटायन इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर खींच लेगा। दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम फोकस मारने वाले हैं लार्ज एनायन। तुम लोगों ने मुझे बता दिया था जितना बड़ा एनायन होगा उतने उसके इलेक्ट्रॉन उसकी कंट्रोल में नहीं होंगे। गायकी अनम्यूट करने वाला हूं। गायकी, यस सर। तो सेकंड पॉइंट में है फजन्स रूल के, लार्ज एनायन मींस बोर पोलराइजेबिलिटी डाली। यस सर। मेरे को रिवीजन करवाना है तो इस करके बार बार पूछता हूं, किसका साइज सबसे बड़ा है? आयोडीन। आयोडीन। आयोडाइड अगली बार बोलेगा, वरना घर में चाय Yes, पीने sir. आ रहे। ठीक है, तो साइज तो इधर जाते हुए गुड़िया, पोलराइजेबिलिटी ऐसा ही कुछ वर्ड बनाया था, इंक्रीजेस। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस का मतलब, हाँ जी गुड़िया, कौन सा करेक्टर इंक्रीजेस? कोवेलेंट कैरेक्टर। increases. अब गायकी, nobody else will speak. Arrange in increasing order of covalent character. देख मैंने केटायन को फिक्स कर दिया है, देखो दिख रहा है? यस सर। एक चीज का इफेक्ट देखने के लिए दूसरे को फिक्स कर देता हूँ। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड में किसके इलेक्ट्रॉन केटायन की तरफ ज्यादा भागेंगे? Nobody else? Let her. आ गायकी। सर सोडियम आयोडाइड। तो कॉन्फिडेंटली बोलना, गलत है सही है मैं इसको ठीक करूंगा। सर सो डी ऑप्शन, मतलब This is going to be most, मोस्ट कोवेलेंट, or you can say लीस्ट आयोनिक कैरेक्टर। this is going to be most Ionic. आयोनिक कैरेक्टर। or least। कोवेलेंट। अगर आज का टॉपिक ना होता तो आपको पता ही नहीं लगता किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, चलिए कनौजिया आप में से बात करिए। कनौजिया, अभी भी कराया, समझ why the compounds of lithium and beryllium are mainly covalent, although these are expected to be लेफ्ट और राइट में है ना आयोनिक कंपाउंड्स। लिथियम को कौन से कंपाउंड बनाने थे कनौजिया? आयोनिक कंपाउंड।
बट लिथियम और बेरिलियम कौन से कंपाउंड बना रहे हैं दोस्त? द एक्चुअल में कोवेलेंट कंपाउंड। Covalent. व्हाट इज द रीजन बेटा? देखो पता है लिथियम और पेज नंबर 42 याद रखना है तनुजा। तो ये पीरियोडिक टेबल हमें परेड करवाता है बेटे। तो पीरियोडिक टेबल, अरे मैंने आज के दिन में पीरियोडिक टेबल कहाँ डाला था? मैंने दिखाया था ना तुम लोगों को। Yes, sir. So 70. 70 मेरा पीरियोडिक टेबल कहाँ गया? So पीछे ये रहा, ये भी है। तो ये देखो लिथियम और बेरिलियम यहाँ बैठा है। तो why these are not forming the ionic compound? Yes कनोजी, समझ सकता? हाँ, कौन बोलना चाह रहा है? so मैं बताऊँ हाँ बोलो। सर लिथियम और बेरिलियम का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए उनकी जो जेड इफेक्टिव होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो काफी हाई होती है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करते हैं और वो शेयरिंग करते हैं और वो कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। Because of very small size of lithium and beryllium. बिल्कुल चुप। They have very high Z. पोलराइजिंग power. Therefore, their compounds will be mostly कोवेलेंट। कोवेलेंट। चुप, बहुत अच्छा जवाब दिया। ये आपने जवाब दिया और ये मैं आपसे पूछने वाला हूँ। Who is this caller 002? Please introduce. Otherwise, you are dismissed. If accidentally you are our student, you should speak out. Otherwise, you are immediately going to be dismissed. No rule for anyone who is not going to disclose his or her. चुप, आपने जो मुझे जवाब दिया, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। लिथियम सोडियम बेटे याद कर, बेरिलियम मैग्नीशियम, बोरॉन एल्यूमिनियम, इधर कार्बन सिलिकॉन। दोस्त तेरे को याद है डायगोनल रिलेशनशिप? यस सर। तो असूलन लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में कौन से बॉन्ड, कौन सी सिमिलैरिटी है? डायगोनल रिलेशनशिप। यस सर। Lithium and magnesium have similar इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। good diagonal relationship. आपने पता ना, आपको किया हुआ आपने यस diagonal relationship. Therefore एक लाइन लिखने वाला, ठीक, बस कोरिलेट कर, तुम्हें आता है। तो आपने एक क्वेश्चन मुझे बताया था, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक। Therefore magnesium also forms, बोलो, Covalent bond. आ रहा है, क्योंकि यस इनकी आपस में रिलेशनशिप है। होना मैग्नीशियम के अंदर भी आयनिक करैक्टर चाहिए था, वही क्योंकि लेफ्ट और राइट वाला ड्रामा है, बट वो भी कौन से कंपाउंड बनाते हुए पाया गया है? द कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हुए पाया गया है। दिस इज द डायगोनल रिलेशनशिप पाई गई। तो एक बात तय रही, आप लोगों ने ये मुझे बता दिया है कि छोटा केटायन और बड़ा एनायन आपस में क्या लेके आता है? द कोवेलेंट। आयनिक। ओ, आपने सही बोला, मैं गलत बोल गया, कोवेलेंट करैक्टर लेके। अब दोस्तों ये थर्ड पॉइंट को देखना है। सो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो प्लीज मेरे से बात करें। सिंस d ऑर्बिटल बिकॉज ऑफ देयर डिफ्यूज शेप हैव लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या यहां तक क्लियर है? बहुत बार हो चुका, इनर्ट पेयर इफेक्ट देखा था, पता नहीं क्या क्या देखा था। d ऑर्बिटल बिकॉज ऑफ देयर डिफ्यूज शेप हैव लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग Yes, इफेक्ट sir. को गाइस इधर s और सिग्मा बोल सकता है पिपेट, है ना। अब पिपेट Sir. दूसरी लाइन को कर रहा हूं। Cations having filled outermost d subshell will have more Z effective and hence cause more covalent character. And hence cause more covalent character. Covalent character. For example देखो बच्चों, पोटाशियम, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 19। तो 19. पोटाशियम की जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, आप लिखते थे नियॉन 10 3s2 3p6 4s1। सो अगर पोटाशियम लिखा तो क्या आपको समझ आ गया?
This is going to be 3s2 3p6. This is the noble gas configuration. ठीक है, पोटाशियम आयन की। अब राइट हैंड साइड कॉपर पे फिक्स करो। कॉपर का एटॉमिक नंबर वाज कितना था? 29। 29. एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन याद करो। आर्गन गाय 4s. की Yes, sir. राइट 3d10 पिपेट 4s1। Yes, Yes, sir. sir. तो अंकल इसमें पिपेट गई की, तो इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन उठाया तो 3d10 रह गया। Yes, sir. Yes, sir. अब पोटाशियम और कॉपर को कंपैरिजन करो। पोटाशियम में 19 इलेक्ट्रॉन और उसमें 29 इलेक्ट्रॉन, मतलब 19 प्रोटॉन और 29 प्रोटॉन कॉपर में। तो कॉपर के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, डी में शील्डिंग तो बड़ी कम है, होनी चाहिए थी यहाँ पे Z कम, बट इनके ऊपर Z क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। Hi, sir. पोटाशियम और कॉपर में इसका Z इफेक्टिव क्या पाया गया है? हाँ जी, Higher. ज्यादा पाया। क्यों पाया गया है? क्योंकि पुअर शील्डिंग ऑफ गाय की डी ऑर्बिटल्स। तो अगर Yes, sir. ऐसा है तो वही तो मैंने बोला था, केटायंस हैविंग आउटरमोस्ट फिल्ड डी सबशेल will have more Z effective and hence cause more covalent character। Covalent character. कि पोटाशियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड में से किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? Copper chloride. Copper chloride. गुड। पेज नंबर 44 याद रखना बेटे, मैं वापस आऊंगा उसके ऊपर। गाय की एक चीज देख, जितना फासला पिपेट दोनों में ज्यादा है लेफ्ट और राइट में, उतना कौन सा कैरेक्टर है? आयनिक कैरेक्टर। तो बेटे ये Yes, रहा sir. तुम्हारा पोटाशियम, ये रहा तुम्हारा पोटाशियम, स्पॉटलाइट ले रहा हूं, ये रहा पोटाशियम और ये रहा क्लोरीन। तो देखो इनमें तकरीबन 16 ग्रुप का फासला, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस भी Yes, ज्यादा sir. होगी। तो ये बैठा कॉपर और ये बैठा क्लोरीन, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे ये आपस में नजदीक आएंगे, तो क्या समझा रहा हूं शुरू से, कौन सा करेक्टर लेके आएंगे? द कोवेलेंट। Covalent character. समझ आया बच्चों? सो Yes, sir. इज द रूल। वापस आए हैं फाजन्स रूल से, फॉलोइंग सिचुएशंस ब्रिंग मोर कोवेलेंट करेक्टर। ये पूरी केमिस्ट्री में तुम्हारे साथ साथ चलता रहेगा। आपसे सुनना चाहता हूं, छोटा कैटायन, बड़ा आयन Large. और आउटरमोस्ट डी Outermost ऑर्बिटल orbital. जब भी आएंगे तो आपके साथ कोवेलेंट कैरेक्टर लेके आएंगे। अब एक लड़का पता नहीं कितने दिन से बेचारा 2 लेक्चर 3 लेक्चर से मेरे से एक चीज पूछ रहा था। मैंने कहा था यार समय आने पे कराऊंगा, तो इसने पीछे भी पूछा था, मैंने कहा था अगली लेक्चर में आएगा। चुप। सो आई न्यू इट कि आने वाला है बेटे। So that is the reason I never discuss with you. I'm now going to discuss in detail with you. ठीक? The hydration Yes, sir. enthalpy. Hydration enthalpy कह दो या energy कह दो दोस्तों, it is the amount of heat released। देख, पानी जब भी किसी के साथ चिपकेगा, whenever bond is formed, there will be certain attraction. Attraction always leads to decrease in energy. So बेटे it is the amount of energy per Released. Energy released. गई कि शाबाश, बोला कर ऐसे। तो अमोदनी जैसे बोलती है ना, तो चुक जैसे बोलता है, बीच में बोला करो सारे बच्चे। ये पिपेट भी बोलता है, अग्रिम भी बोलता है, शर्म मत किया करो, आपको खुद पता लग जाता है। अगर डिस्टर्बेंस है तो आप म्यूट कर सकते हैं। तो गुड गायकी। तो गायकी जो एनर्जी रिलीज होती है व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयन इज बीइंग हाइड्रेटेड, so that energy is known as गुड़िया हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एनर्जी भी बोल सकती है। सिंबल क्या होगा? डेल्टा के पैरों में HYD डॉट H नॉट। फॉर एग्जाम्पल अमोदनी, एक एल्यूमिनियम आयन के साथ जब खूब सारे पानी आके चिपके, याद रखना आयन इज इन द गैस फॉर्म। Yes, H sir. प्लस जब पानी के साथ चिपकेगा, ये क्या लिखा है मैंने? एक्वस। Aqueous. एक्वस। तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी दोस्तों, व्हाट इज गोइंग टू बी दैट? हाइड्रेशन एनर्जी। आई डू नॉट नो कि आप लोग अपनी किचन में कितने जाते हो। द बेस्ट प्लेस टू लर्न केमिस्ट्री इज स्टैंड विद योर फादर, स्टैंड विद योर मदर। जब वो किचन में काम करते हैं, यू विल कम अक्रॉस मेनी थिंग। और क्योंकि तुम साइंस के स्टूडेंट हो ना, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब अगली बारी जब वो चावल या राजमा जब वो पानी में डुबोएंगे,
तो उनके साथ खड़े होना, धो लेने देना उनको, धोना जरूरी है क्योंकि उससे जो भी आपके जो इम्प्यूरिटीज हैं जो हम नहीं जानते हैं, कोई पेस्टिसाइड वगैरह है, वो निकल जाएंगे। अब उसके बाद उसको डिप कर दीजिएगा। ट्राई टू ऑब्जर्व, अगर आसपास का टेम्परेचर ठीक है, सर्दियों में शायद ये इफेक्ट कम नजर आए, बट यू विल सी 7-8 घंटे डुबोने के बाद आपके राजमा और चने गर्म हो जाते हैं। गर्म इतने नहीं होते कि वहां पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। यू कैन सी नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर दे आर गोइंग टू सोक योर राजमा और चने इन वाटर, दैट इज आल्सो द हाइड्रेशन यार। चावल को, राजमा को, चावल को पानी आके जुड़ रहा है, तो ऑफ कोर्स पानी आ रहा है तो कोई ना कोई बॉन्ड तो बना रहा होगा। जब बॉन्ड बना रहा होगा तो हीट निकलती। डोंट डू दिस थिंग, राइट। एल्फी लेना, दिस इज ओनली अ हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट। अपनी उंगली पे छोटी सी, मतलब जितनी सुई के नोक पे आ जाती है, राइट, उतनी एल्फी डालना, बहुत कम, और दूसरी उंगली को उसके ऊपर रखना। यू विल फील हीट कमिंग आउट। सर Right? एल्फी क्या होता है? एल्फी कुछ सर ये मैंने फेविक्विक से करा था सर, फेविक्विक से करा हुआ है सर ये। उससे भी हो जाता पिपेट। तो फेविक्विक हो गया, एल्फी हो गई, ये जो जोड़ने के लिए आते हैं, जो मेटल को भी जोड़ देते हैं, शीशे को, रबड़ को नहीं जोड़ देते। 5 रुपए 10 रुपए की छोटी सी ट्यूब आती है। सो आप लोगों ने कोई चीज घर में टूट गई है तो उससे जुड़ा होगा। सो उत्कर्ष होगा क्या, हीट निकलेगी। हीट निकलेगी तो बॉन्डिंग होगी यार। कभी हो ही नहीं सकता कि एंडोथर्मिक हो और बॉन्ड मजबूत बने। जब पिपेट मेरी तरफ आया है, हमारे बीच में दोस्ती हुई है, तो हमारी स्टेबिलिटी की तरफ गए। पिपेट मेरी तरफ आया, मेरी और उसकी लड़ाई चलती जाती है, तो हीट चाहिए होगी। वो हीट इज गोइंग टू बी उस केस में पॉजिटिव होगी। वापस चुग, व्हाट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी, बोल भाई। Amount of energy released when 1 mole of iron is being hydrated. याद रखना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 मोल है। 1 Right? mole of iron. जैसे अमाउंट ऑफ टाइम अगर हमने लिया है तो हम एनुअल ईयर, कैलेंडर ईयर 12 महीने का लेते हैं, तो ऐसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 मोल है। सो दैट इज गोइंग टू बी नोन एज विच एनर्जी, द हाइड्रेशन। Energy. अब देख, वही बात है, वो चीज हमेशा चार्ज डेंसिटी कंट्रोल करेगी। जितना छोटा साइज होगा दोस्तों, द स्मॉलर द साइज, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, the छोटा the size the greater will be the hydration energy। अरे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी यार, जब भी कभी आई। मेरी केमिस्ट्री में चार्ज डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक टेनिस की बॉल के ऊपर, एक मार्बल के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, और एक फुटबॉल के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो विच हैज मोर चार्ज डेंसिटी, स्मॉलर चीज के ऊपर। द मोर द चार्ज द ग्रेटर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी। क्यों? पानी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट दोनों है दोस्तों। तो जब पानी को आप पानी में कोई चीज डालेंगे, लेट इट बी सोडियम डालेंगे, तो पानी के अंदर आप लोगों ने तो मुझे पोलैरिटी करवाई हुई है, दिस इज गोइंग टू बी क्लोराइड है। सो देखो, द पानी, द ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी सराउंडिंग द सोडियम आयन, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी हाइड्रेशन, एनर्जी निकलेगी। और अगर नेगेटिव है तो आपके पास जो पानी होगा उसमें पानी के अंदर H+ भी तो होता है ना। So this is going to be attracted toward that. So पानी एक यूनिक सॉल्वेंट है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दोनों हैं, जो केटायन और एनायन को दोनों को पकड़ता है। अब अगर एक केस सोडियम और दूसरा केस मैग्नीशियम हुआ, तो किसको पानी आके ज्यादा चिपकेगा? कैन यू मेक आउट? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम साइज। बिल्कुल। अब बेटे ये देखो, तीसरा केस क्लोराइड आयन और चौथा केस फ्लोराइड आयन, किसका साइज छोटा है? फ्लोरीन। फ्लोराइड आयन। तो अगर फ्लोराइड आयन इज छोटा तो किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी? फ्लोराइड आयन की। तो इन दो स्टेटमेंट्स का ध्यान करो, द स्मॉलर द साइज द ग्रेटर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी, द लार्जर the size, the lesser will be the hydration energy. The more the charge, the greater will be the hydration energy. तो अगर मैं सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को देखूं, तो इधर जाते हुए do you people understand आइसोइलेक्ट्रॉनिक में साइज कम होता था, चार्ज करता है, इंक्रीज करता है, तो हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? एल्युमिनियम। किसकी कम होगी? ये वैल्यूज याद नहीं, दिमाग में रखो। हाइड्रोजन आयन बहुत छोटा है, हाइड्रोजन आयन इससे छोटा कोई चीज कभी तुमने सोची है?
H plus is proton, nucleus. इससे छोटा कोई पॉजिटिव चार्ज समझ सकते हो? No, not possible. और एल्यूमिनियम आयन हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, -4680, याद नहीं करनी है, -1100, बस दिमाग में रखनी है। तो मैं आगे लेके जा रहा हूं। Sometimes large amount of hydration energy released help in loss of electron, hence making the otherwise covalent compound turning ionic. देखिए, अगर आपने एल्युमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, आप समझ सकते हैं कि एनर्जी का बहुत ज्यादा खर्चा होगा, बिकॉज इस वक्त द आयनाइजेशन एनर्जी इज आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2 एंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा 3. सो एल्युमिनियम नॉर्मली 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, रेदर देन एल्युमिनियम के पास जब 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कम एनर्जी वाली स्टेट में बैठ जाता है और कौन सा बॉन्ड बनाता है? दैट कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. डज नॉट गो इनटू कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने बहुत मुश्किल होते हैं. मैं क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे डिस्कस करता हूं. अमोदनी से मैं बात कर रहा हूं इस वक्त. यस सर Amodini, there's a question written on your screen. Why HCl gas is covalent but HCl aqueous is ionic? हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है. ये पॉजिटिव थी वीडियो, मैंने गलती से माइनस लिख दिया है. तो हाइड्रोजन जब क्लोरीन से मिलता है तो उसमें से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो H+ नहीं बनाता है. इस करके वो चुप करके कौन सा बॉन्ड बना लेता है? कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? बिकॉज It is आयनाइजेशन high. एनर्जी इज वेरी हाई, वेरी सो हाई दैट इज अनअवेलेबल. प्लीज स्पेलिंग का ध्यान मत करना, मैंने कोशिश नहीं की है. अब दूसरी तरफ देख, अब अगर एक्वस मीडियम हो, एक्वस, तो व्हाट हैपन? हाइड्रोजन अगर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उसको 1312 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ती है. यस सर बट इमीडिएटली वो अगर पानी, यहाँ पे पानी नहीं था, यहाँ पे वो गैस फेज में था, और H+ क्या बना देता है? एक्वस. इस एक्वस जो हमारी एनर्जी होती है वो हाइड्रेशन एनर्जी बाहर आ जाती है 1100, राइट. और हमारी जो डेल्टा H नेट यहाँ पे हमें देनी पड़ती है, दैट इज 212 किलो जूल की देनी पड़ती है. Therefore, HCl aqueous becomes what? It becomes a कोवेलेंट covalent से क्या आयनिक बन-? बॉन्ड कुछ ऐसा सोच. मैंने गायकी को बोला, गायकी एक किताब लेके आनी है, दैट इज कॉस्टिंग 1312 रुपीज. तो गायकी को इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा. उसकी पॉकेट में से 500 रुपीज थे, तो गायकी could not buy that book because she did not have enough money. Understood? यस Now, सर ये वाला केस आ गया. ये वाला उसने क्या किया? वो किताब खरीदी. अब दूसरे वाले केस में उसके घर में कोई पुरानी रद्दी की किताबें पड़ी थी जिसका कोई यूज नहीं था, तो वो साथ में ले जाती है. गायकी वहां से 1100 रुपीस की किताबें बेच देती है. वो नई किताब अभी भी 1312 रुपीस की आनी थी, तो आपकी पॉकेट में 1100 एक्स्ट्रा आ गया. 500 रुपए आपके पास था, तो आपकी पॉकेट में अब कितने हो गए? 1600 रुपीस हो गए. 1600 यस तो सर आप इस बुक को आसानी से बाय करेंगे, रेदर यू विल बी हैविंग सरप्लस ऑफ एनर्जी, सरप्लस ऑफ मनी टू कम बैक. यस सो सर व्हाई HCl aqueous is ionic? अपने वर्ड्स में एनर्जी की कोई ध्यान मत कर, राइट. ना एनर्जी किसी ने आपको बतानी है, ना पूछनी है, आप मुझे सिर्फ समझाइए. तो मैं बताऊं, हाँ भी गाय ओ अमोदनी, एक मिनट चुप. गायकी एक मिनट चुप. यस गायकी. No.
चल भी चुप बताओ। सो जो Why don't हाइड्रोजन other- और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो हाइड्रोजन और क्लोरीन जब वो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे तो हाइड्रोजन को पहले आयोनाइज होना पड़ेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हमें गिवन है जो कि बहुत ज्यादा हाई है। तो हमें ये भी गिवन है कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन आयन की वो हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो फिर हम वाटर डालेंगे HCl में, तो उसमें वो डिसोशिएट होके एनर्जी रिलीज होगी, तो उसको सपोर्ट मिल जाएगी कि मतलब अगर उसको हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे फिर वो आयोनाइज ठीक है आयोनिक कंपाउंड बनाएगा aqueous। गुड। तो HCl anhydrous is covalent because high, हाँ जी बेटे, ionization energy is unavailable। therefore hydrogen tends to share electron to form कौन सा bond? कोवेलेंट बॉन्ड। बट बिल्कुल सही जो आपने बोला था उसी को बढ़ा रहा हूं। बट इन aqueous state the large amount, वर्ड डालता रहा भाई, of हाइड्रेशन एनर्जी इज released which, हाँ बेटे वर्ड मेरे से देख के बोलना कोई बात नहीं, compensates the high, compensates the high enthalpy। very good, that is the reason बेटे, exact minimum words में। अब दोबारा देखते हैं why aluminium chloride the solid anhydrous, solid को क्या बोल सकता है? सूखा, सूखा क्या होता है? anhydrous is covalent, बिल्कुल वही। it is very high, देख लैंग्वेज थोड़ी बहुत ही फर्क हो सकती है, वही है of वैल्यू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, that is, बिल्कुल चुप, यही वर्ड यूज करना है, that is very high। ठीक है 5137 याद ही नहीं करना है, किलो जूल। यस सर। that is, हाँ जी सोच क्या लिख रहा हूं? Unavailable। in, सो इट पूरा वर्ड डालना anhydrous यार, anhydrous state, therefore the aluminium shares 2 electron 3 electrons 3 electron to to form form covalent covalent bond। एल्यूमिनियम में जुगत लगाता है और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ मिलके क्या कर लेता है? शेयर कर लेता है। ऑक्टेट अभी भी इसका पूरा नहीं है, इट इज अ लुईस एसिड है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। बट इन, हाँ जी कौन सा मीडियम? aqueous medium। तुमने स्कूल में तो खैर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम the amount of energy लार्ज अमाउंट, पूरा वर्ड बोलो, हाइड्रेशन Hydration energy। release compensates to वेरी high गुड, ये वर्ड बोलना चाहता हूँ, ionization compensates the high otherwise, बिल्कुल सही, ionization energy, therefore AlCl3, हाँ जी बेटे, aqueous is is ion। ionic, you understand? सर हमने किया, हाँ बोलो, perfect। सर जो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी अनअवेलेबल होती है वो क्लोरीन के पास नहीं होती। ना, उससे बॉन्ड बनने से इतनी एनर्जी नहीं रिलीज होती है कि वो एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी को कंप्लीट कर दे, वो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंपनसेट नहीं करती है। ठीक है, ओके सर, ओके सर। that does not compensate this। see, अब मेरे साथ रहा जरा पिपेट। हमने आपको एक टॉपिक कराया, मेथड ऑफ प्रिडिक्शन, मेथड ऑफ प्रिडिक्शन, ठीक है, एब्रिविएशन समझेगा, ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर। पहला लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के साथ, right hand यस side। सर।
हर पॉइंट के बाद आपकी नॉलेज बढ़ती है। अब मैं अगर आपको ऐसा बोलूं तो आप मुझे जवाब दे पाएंगे, व्हाई लिथियम एंड बेरिलियम मैग्नीशियम डू नॉट फॉर्म ionic bond, they are expected to form ionic compound because of Pasan's rules. Alright? Yes, sir. Yes, sir. Got it? ठीक है जी? क्या था? 1.7 1.7 rule. अभी देखो पहले दिक्कत आ रही थी, Hanny Smith Hanny. formula. अब थोड़े से आप कंफर्टेबल होने शुरू हो जाएंगे। हैने स्मिथ फॉर्मूला। फोर्थ, द Observation. very good. Observation. ना New new theoretical observer, Um, new new theoretical। theoretical. फिफ्थ क्या था? Pasan's rule. Pasan's rule. और सुनो कभी कभी डिफरेंट बुक्स में ना Z भी लिख दिया जाता है, Pasan's rule। और सिक्स्थ आपने क्या देखा? समटाइम्स लार्ज अमाउंट ऑफ द हाइड्रेशन एनर्जी, डेल्टा H हाइड्रेशन makes the compound Ionic. Ionic. makes the compound ionic, समझ आओगे? makes Yes, sir. the compound ionic. That is, son, the topic which we have covered today. It was a major topic. तभी मैंने कहा था आज यही हो पाएगा. No bond is 100% ionic or 100% covalent. Every bond is the mixture of covalent character and the ionic character. Next class we will be moving toward even important topic that is known as shapes of molecules. It will be very important theory, valence shell electron pair repulsion theory. One of the most important topic of your 2-year chemistry introduce hoga. So now it is the final call. I expect that all of you are comfortable with the group number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 वाले से लेके top to bottom without any mnemonic. I will be asking you germanium के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? Spontaneous आंसर निकलना चाहिए जी 4. Antimony has 5 valence electron. Sulfur has 6 valence electron. I am going to expect that. So we will start with this topic in next class, not today, because that is going to be extremely important topic. जो आप पीछे कर रहे थे ना, मैं आपको बता रहा था अमोनिया का शेप पिरामिडल है, सल्फ्यूरिक एसिड का टेट्राहेड्रल है। नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्यों है, कैसे है, आपको कैसे पता लग सकता है कि हम नेचर की ऐसे कौन सी चीज को समझ गए हैं जिससे हमें ये चीज पता लग सकती है। राइट सन? सो वी स्टॉप हियर नमन and see you in the next class. तो Sir, तुम्हारा next hydration class Friday, Monday है. मैं बताता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली उस दिन टेस्ट रखेंगे बेटे, अकेला मंडे को होगी। Okay. ठीक है जी, फ्राइडे को देयर विल बी ओनली टेस्ट। आपकी बायो की छुट्टियां भी शुरू हो गई है ना? Yes, sir. शायद छुट्टियां भी शुरू हो गई ना? अभी मैं केमिस्ट्री में कोई छुट्टी नहीं करने वाला हूँ, अभी नहीं, आराम से करेंगे, बट अभी कोई लॉजिक नहीं। चलो जी, प्लीज मेक नोट्स एंड सी यू अगेन with the Vesper theory in the next class. Good luck, bachcho. See you again. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, Sakshi. Yes, sir. Bye. Oh, Thank you, sir. good luck, bachcho. Bye bye. Excuse me, sir. Bye, sir. Hello. सर जो वाटर है उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, पर वो तो नॉन पोलर कंपाउंड को डिसॉल्व करता नहीं है। अच्छा चल, यहीं पे रोकते हैं। वाटर मिट्टी को भी घोल देता है, वाटर नमक को भी घोल देता है, वाटर जानवरों की जो लाशें पड़ी रहती हैं पानी में उसको भी घोल देता है। ठीक ठीक है सर। बाय मेरे बच्चे। Excuse me, Yes. sir. हाँ बोलो। सर मुझे फर्स्ट थर्ड आपने जो वीडियो भेजी थी, मेरे को मैसेज कर देना, आ जाएंगे बेटे। नहीं सर, वो सर उनकी पीपीटीज चाहिए थी मेरे को सर, नोट्स के लिए ना। मुझे ना मैसेज करना, उससे रिकॉर्ड में रहेगा।
उससे मुझे याद रहेगा, ऐसे मुझे अभी अभी भूल जाना है, मैसेज करना लिख के ना एग्जैक्टली क्या क्या नहीं है ना। ठीक है सर, ओके। ओके, बाय बाय। Thank you, sir. बाय अनया, गुड लक, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।